We are continue for the free classes for KVS PGT English, and in our previous classes we could cover some of the poems and some of the stories that were there, and today we have another story that's quite a lengthy one, and that's from Jayan to Vishnu Narlikar, and the story is entitled The Adventure, that we will study actually today. Before we go to the story, we have to go through the question session. That generally we go through the lesson that we have already learnt there, and that we will do it again, like we will try to go through the question session. And here is the story, The Adventure, from Jayan to Vishnu Narlikar. So, The Adventure. That we will study here in the class. Okay, and before we move to the class, we have to go through the question session. And here is our first question of the day, that is, when was the first edition of The Leaves of Grass published? When was the first edition of The Leaves of Grass published? This is the first question of the day from Walt Whitman. And we have some answers there on the screen. That starts with the reply of Sachin, is followed by Nidhi. Oh, Pradeep, just check your answer. Vinita, and now Pradeep. They have all answered it correct. And the right answer is 1855. That's a nice one. In 1855, we have the first edition of The Leaves of Grass, and after that, it covers almost 38 years almost, and in 1892 we received the last edition of the work. Okay, going with the next. What's the name of the poetess who wrote a poem? What's the name of the poetess that wrote a poem, A Photograph? And we receive answer there on the screen that we received from Sachin, and he has answered it correct, to be Kathleen Shirley Tolson. Okay, now Sachin is followed by Subhash, Nidhi, Vinita. They have all answered it correct. The right answer is Kathleen Shirley Tolson. Pradeep, your answer is coming slow. Be quick. Okay. What's the name of the magazine that published The Voice of Rain first? What's the name of the magazine that published The Voice of the Rain first? We see The Voice of the Rain was published in 1885 for the first time, and after that it was included into the 8th edition of The Leaves of Grass. And we have the answers from Sachin, and is followed by Nidhi, Vinita, Subhash, Pradeep. They have all answered it correct. The right answer is Outing. Exactly. Outing was the magazine that had the publication of the poem The Voice of the Rain. Okay, going with the next. What's the number of stanzas used in the poem The Laburnum Top? Number of stanzas used in the poem The Laburnum Top. It's a poem from Ted Hughes, and you will have to tell
the number of stanzas employed in the poem. Good morning, Pooja. And we have the answers there on the screen, that we go with the reply of Subhash, followed by Kalpana, Pradeep, Vinita. Good morning, Kalpana. They have all answered it correct. The right answer is 4 stanzas. Exactly, the 4 stanzas are there in the poem, the laburnum top. Okay, going with the next. Which bird has been mentioned in the poem? Okay, that's my mistake actually. Confused. Okay, what's the meaning of the phrase a turning point from the story, The Portrait of Lady? What's the meaning of the phrase a turning point from the story, The Portrait of Lady of Khushwant Singh? See, you will have to explain this a turning point, keeping the portrait of lady in your mind. Okay? What is the meaning of the portrait of lady from the story, The Portrait of a Lady? A turning point is a phrase. That's the question. Meaning of the turning point from the story, The Portrait of Lady. A bit more clarity is required, Kalpana. Good effort, but seems to have more clarity. Actually, a turning point is no doubt a changing that occurs between the relation of the narrator and the grandmother. And as you suggested here that they shifted to city, that's good, they shifted. Actually, shifting the city means separation and distance between the two that had been so close, and how loving grandmother was when she was paying proper attention to the care of the young lad. And here she will find herself helpless, and the young lad will not be able to receive the attention of the grandmother. So this is how you find that the simple thing is this, that a turning point from the reference perspective of the lesson, The Portrait of Lady, is actually changes in the relation between grandmother and the narrator. Changes in the relation between grandmother. Radhe Radhe Tulsi. Good morning, Sudhanshu. Sudhanshu, that's not, Sudeshna. Okay, Sudeshna. It's not big problem dear. You see, this syllabus is actually new for all those who are preparing here. For the first time, this syllabus has been included from the NCERT side for the preparation of KVS PGT. And this is why I must say you very clearly that everyone who is preparing for KVS PGT is fresh for this batch, I must say. So don't try to puzzle yourself, or don't try to underestimate yourself. You are simply to give your 100% to the preparation. You should go through the text, because it's a text-based examination that will be held, and pay proper attention to the special lines or dialogues and some special phrases from the lesson, and try to explain those from the perspective of the essay you are learning or story you are learning, and go with minute detail, or even minute detail of the poems that are there. So it means you don't need to be puzzling there, and there is actually a kind of news that the examination may be held there in February. But from my perspective, it doesn't seem to be possible, because for examination at least 3 months should be given. And as we see in January first week, the last date of filling the form was there. So I think from my perspective, it will take us to March or April
to appear the examination. So I think that you have a plenty of time, 2 to 3 months, and you can simply cover this whole syllabus very easily. And one thing, once again I will say, don't try to underestimate yourself. Everyone for this examination is a fresh year. So don't try to see that you are new and you're going to be underestimated. Just focus on your study, go through the works that you have been given, and proper concentrated study will always help you. And whatever possible helps are possible. English Kingdom is always there. And if you want to be in our group, so simply there is our contact number 9369542072. Simply you will send a message. This is our Telegram number actually, and on Telegram we have made free and public. It's not public group actually, because of some hurdles I have just made it private, but it's a free class that we are giving in a group on Telegram. So simply you go on Telegram and send us message with your name and the course you want to join there. Definitely we are running TGT class also, but that's not a free. PGT is free. So in PGT class we will include you. So all the previous classes that have been left, you will simply find there, and the next classes link you will find in the group every morning. Otherwise you can visit our public playlist on the channel English Kingdom as well, and you will find there KVS English 2022 as a group, and you will find the classes there also in a sequence. So you may go either way, simply to visit our playlist on YouTube, or you can just simply message us on Telegram 9369542072. That's our Telegram number. And then we will include just one difference. If you go to playlist, you will simply find the class. You will not find the live classes link. And if you come to this Telegram group, you will find daily the live class links, and you can be the part of live class, because I think the important thing that we go through the classes is a question session that we take almost about 15 to 20 minutes daily. And through that question session, we make it possible that in a glance you can say there is the revision of the everything that you have learned before. So I think you should go through. So all these things are there for your message. Don't try to, just one thing I will say, don't try to demoralize yourself. Just be positive, work hard, and go straight, and just think that there is everyone new in this group. So don't worry at all. Don't worry at all. Just focus on your positive aspects. Just focus on the things that you can do even better and give you 100%. So selection is something that I think is a matter of commitment, and not it's like the fresh and old one. And from my perspective, what I have seen in recent years, it's the fresh learners that crack very easily the exams than the old ones that are preparing for the long time, because it's tough for the old ones to grab new ideas, but when the fresh minds come there in the group, they simply grab the ideas, and that is actually the positive point of the new ones. So don't worry, if you are new, there are many things as positive for you. Okay, just keep it up. Okay, and we go with the next one, and that is, what's the name of the daughter of the narrator from the story We Are Not Afraid to Die? Welcome, Sudeshna. We Are Not Afraid to Die. The narrator has a daughter. You will have to tell the name of that daughter, and we have the answers there on the screen from Sachin, followed by Vinita, Gyaneshwar, Kalpana, Nidhi, Subhash, Sanjeev. They have all answered it correct, and the right answer now it's Kavya and Nidhi, that it is Suzanne. That's a good one. Suzanne is the daughter of the narrator from the story, and that is, we are not afraid to die. Okay, going with the next question. What's the name of the author who wrote the story Discovering Tut? The saga continues. What's the name of the author who wrote the story Discovering Tut?
The saga continues. Okay, and we have the answers there on the screen. Starting with the reply of Sachin and Sachin, and he is followed by Subhash, Kalpana, Sanjeev, Kavya, Nidhi, Pradeep. They have all answered it correct, and the right answer is A.R. Williams. That's good. What's the name of the archaeologist who started exploring the mummies of Tut in 1922? What's the name of the archaeologist who started exploring the mummy of Tut in 1922? And we have the answers there on the screen that go with the reply of Gyaneshwar, is followed by Subhash, Sachin, Nidhi, Kavya, Kalpana, Sanjeev, Pradeep. They have all answered it correct, and the right answer is Howard Carter. Exactly, in 1922, it was Howard Carter who was exploring the mummy of Tut from the story. Okay, going with the next. What's the name of the poem that has the line, "She launches away towards the infinite"? She launches away towards the infinite. Which poem has the line? She launches away towards infinite. Which poem has the line? And we have the answers there on the screen that starts with no Kalpana. That's not so. The right answer starts with Gyaneshwar, is followed by Sachin, Nidhi, Kavya. They have answered it correct, that it is the poem from Ted Hughes, The Laburnum Top. Exactly. The Laburnum Top has the last line from the second stanza that we received. And now we'll move to the next one. That's going to be actually the last of the question session. Which poem has the line, "I give back life to my own origin and make pure and beautify it"? I give back life to my own origin and make pure and beautify it. I repeat, which poem has the line, "I give back life to my own origin and make pure and beautify it"? Well, so this is going to be the last question from the question session today, and we have some answers there on the screen. And the right answer is starting with the reply of Subhash, is followed by Gyaneshwar, Sachin, Nidhi, Kavya, Vinita, Deven, Kalpana, Pradeep. They have all answered it correct. And the right answer is, the work is from Walt Whitman, The Voice of the Rain. And I think this is the line that we primarily discussed as a duty or role of one towards the planet one is born. So rain is very dutiful whenever there is a chance to show its obedience. It comes and make this world beautiful and worth living for people like us. So this is how Walt Whitman justifies the role of the rain.
because the phrase is there, I give back life to my own origin, means where the rain found its origin, rain after becoming able gives life to the same place or same origin. Okay, so that was all from the question session, and now the time is there for us to move to the adventure from Jayant Vishnu Narlikar. And as I told you, Jayant Vishnu Narlikar is an Indian astrophysicist. Astrophysicist means he is a kind of physician and professor at the Inter-University Center. He is there as a professor for astronomy and astrophysics. Actually, he is a scientist. Still living, Jayant was born on 19th July 1938. And he was born in a place named Kolhapur in India. इनकी फैमिली काफ़ी रेप्यूटेड और रिच फैमिली रही है। एजुकेशन की ओर से अगर देखा जाए तो होल फैमिली इज़ very rich, means well equipped with the knowledge. और इन्होंने स्पेशली सर फ्रेड हॉले के साथ मिलकर के आइंस्टीन की एक थियरी थी, उस आइंस्टीन के थियरी को इन्होंने मिलकर के, ग्रेविटी की जो थियरी थी उसको मिलकर के एक अलग थियरी बनाया, हॉले नार्लिकर थियरी। एक अलग थियरी बनी, दैट इज हॉले नार्लिकर थियरी के लिए जाने जाते हैं, जहां पर सर फ्रेड हॉले और जयंत विष्णु नार्लिकर दोनों ने मिलकर के आइंस्टीन की थियरी को और आगे बढ़ाने का काम किया। अल्बर्ट आइंस्टीन की थियरी और साथ में मैक्स की थियरी को भी इंक्लूड किया था। हिज फादर वाज विष्णु वासुदेव नार्लिकर। विष्णु वासुदेव Narlikar, his father was there, and he was a mathematician and theoretical physicist. Means ये भी mathematician थे और physicist थे। ये professor थे और head of the department of mathematics थे, BHU, head of the department of mathematics at BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और इनकी मदर थी सुमति नार्लिकर। सुमति नार्लिकर, and she was also reputed scholar of संस्कृत। तो मदर से संस्कृत की जानकारी और फादर, जैसे मैंने बताया कि मैथमेटिशियन थे, इनका रिलेशन मैथ्स से था, एंड ही वाज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एट BHU। तो फैमिली में काफ़ी
रिच एजुकेशन था एंड बाद में इनको चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया फॉर द एडवाइजरी ग्रुप ऑफ टेक्स्ट बुक इन साइंस एंड मैथमेटिक्स. He becomes the chairman. Narlikar becomes the chairman. He becomes the chairman for the advisory group for textbook in science and mathematics. Actually, इस बुक को डेवलप करने का काम किया गया था NCERT के द्वारा. NCERT के द्वारा ये जो चेयरमैन बने तो इन्होंने बुक को डेवलप किया, जैसा मैंने कहा, क्योंकि एडवाइजरी जो ग्रुप था, कमेटी था, उसके ये चेयरमैन बने थे और इन्होंने सजेस्ट किया कि किस तरह की मैथ्स को आगे बढ़ाया जाना चाहिए. और NCERT को तो आप जानते ही हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. यहाँ पर उन्होंने चेयरमैन और चेयरपर्सन का रोल प्ले किया हुआ. इन 2004 he received Padma Vibhushan. Padma Vibhushan he received in 2004, the second highest honor for any Indian or any civilian. Padma Vibhushan from India 2004. इसके पहले 1965 में इनको पद्म भूषण भी मिला हुआ था. पद्मा भूषण in 1965. He received quite early Padma Bhushan. That is also a very honorable award for anyone. He received Rashtra Bhushan in 1981. Rashtra Bhushan in 1981. ढेर सारे अवार्ड्स हैं नार्लिकर के नाम, थोड़ा सा मुश्किल होगा सारे अवार्ड्स को यहाँ पर रख पाना. 2010 में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड भी इनको मिलता है. 2010 महाराष्ट्र भूषण अवार्ड. Award he received in 2010. 2010 में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने इनको दिया था. और इसके अलावा he received Atmaram Award by Central Hindi Directorate in 1989. Atmaram Award. He received in 1989. Atmaram Award was given to him in 1989 by सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट. इसके अलावा कई अवार्ड्स हैं, जैसे इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की ओर से इनको इंदिरा गांधी अवार्ड भी दिया गया. और सबसे बड़ी बात, चूंकि हम लोग इनको लिटरेचर में पढ़ रहे हैं, तो लिटरेचर में ही रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिज ऑटोबायोग्राफी इन मराठी. साहित्य अकादमी अवार्ड he received for his autobiography. That he wrote in Marathi, and for it he received Sahitya Akademi Award.
तो एक लंबी फहरिस्त है नार्लिकर के नाम अवार्ड्स की, और अभी ये ख़त्म होने वाले हैं नहीं। गॉड ब्लेस यू रैनो। और अभी ये ख़त्म होने वाले हैं नहीं, अभी हिज लाइफ कॉन्टिन्यूस एंड होपफुली कि ये और भी ज़्यादा सर्व करेंगे इंडियन लिटरेचर को, कम्युनिटी को। हिज वर्क्स इन फिक्शन started with Return of Women, the Return of Women इनके इंग्लिश फिक्शन को शुरू करता है, और द एडवेंचर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसको फॉलो करता है। द वेमन अपीयर्स इन 1990, ये 1990 में आता है। तो इस तरह से जो द एडवेंचर है इसको फॉलो करता है, और द एडवेंचर के बाद द कॉमेट भी इनका इंग्लिश फिक्शन है। ढेर सारे वर्क्स हैं, बट जैसे मैंने कहा फिक्शन के रूप में और स्पेशली इंग्लिश फिक्शन के रूप में द कॉमेट, द रिटर्न ऑफ वेमन और द एडवेंचर, यह भी एक फिक्शन है। तो प्रॉपर्ली अगर हम फिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नार्लिकर के पास ये 3 बड़े वर्क हैं जिसको उन्होंने इंक्लूड किया। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, बट वी कैन नॉट कंटिन्यू विद द होल डिटेल ऑफ हिज बायोग्राफी। और जैसा हमने आपसे कहा कि जो हमारा कोर्स है वो टेक्स्ट बेस्ड है, वो ऑथर बेस्ड नहीं है। तो एक इंट्रोडक्टरी जो पहचान है एक राइटर की, उससे हम लोग इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली इसका ये मोटो तो है नहीं कि हम लोग डिटेल में बिल्कुल डेप्थ में जाएं, बट जितनी चीज़ें ऐसी लगती हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे अवार्ड्स हैं, ढेर सारे अवार्ड्स इनको मिले हुए हैं, उनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर इनके बर्थ और इनके प्रोफेशन को याद रखेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। और फिर क्योंकि लिटरेचर से रिलेशन है तो इनके वर्क्स हैं, और लिटरेचर में कौन कौन से वर्क्स इनके कंट्रीब्यूट करते हैं उसके लिए। और अगर साहित्य अकादमी अवार्ड मिला हुआ है तो नेचुरल है जानना पड़ेगा कि उनकी ऑटोबायोग्राफी जिसको उन्होंने मराठी में लिखा हुआ था उसके लिए उनको मिले थे। जिसका टाइटल मराठी में था 4 नागरांताले मजे विश्वा। तो 4 नागरांताले मजे विश्वा जो इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, उस ऑटोबायोग्राफी के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। द एडवेंचर जैसा इसका टाइटल है, इस टाइटल से ही मालूम चल जाता है कि कहीं न कहीं जो राइटर है वो किसी की एडवेंचर को या किसी के कैरेक्टर को वंडरिंग इमेज के साथ रखता है। और हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि जो मेन पॉइंट्स हों उनको हाईलाइट करें, क्योंकि उन्हें हमें लर्न करके रखना है, याद करके रखना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो जो मेन पॉइंट मिलेंगे, चाहे वो सेंट्रल कैरेक्टर हो या फिर सेंट्रल कैरेक्टर प्रोटोगनिस्ट को मिलने वाले बाकी जो कैरेक्टर्स हों, उनकी सेटिंग के बारे में भी हम लोग ध्यान रखते हैं, क्योंकि स्टोरीज की सेटिंग भी पूछा जाता है। टाइम सेटिंग, प्लेस सेटिंग दोनों के बारे में पूछा जाता है कि कहाँ पर ये सेट है और कब की ये स्टोरी है। तो हमें सारी बातों को ध्यान में रख करके आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। एडवेंचर फ्रॉम जयंत नार्लिकर। दी जिजामाता एक्सप्रेस sped along the Pune-Bombay route considerably faster than the Deccan Queen। चलिए पहली ही लाइन में आपको कुछ पॉइंट्स मिल गए, जैसे जिजामाता एक्सप्रेस, दूसरी बात पुणे बॉम्बे रूट, रूट को कवर करने वाली ट्रेन के बारे में बात हो रही।
और साथ में कंपैरिजन किया गया है डेक्कन क्वीन से। ओके, सबसे पहले ही हमारी मुलाकात इन 3-4 चीजों से होती है जो हमें एक विजिट के बारे में या घूमने के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं। द जीजामाता एक्सप्रेस स्प्रेड अलोंग द पुणे बॉम्बे रूट। जीजामाता नाम की जो एक्सप्रेस है वो पुणे बॉम्बे रूट से होकर के जाती है। कंसिडरेबली फास्टर देन द डेक्कन क्वीन। नेचुरल है, इसकी स्पीड कुछ ज़्यादा थी और डेक्कन क्वीन से कुछ ज़्यादा ही स्पीड इसकी थी। देयर वर नो इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आउटसाइड पुणे। पुणे के बाहर के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कोई इंडस्ट्रियल क्षेत्र नहीं था, कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं था। द फर्स्ट स्टॉप लोनावाला केम इन 40 मिनट्स। पहला स्टॉप जो मिलता है वो मिलता है लोनावाला का। हमारी विजिट को शुरू हुए अभी सिर्फ 40 मिनट्स हुए थे और 40 मिनट्स के बाद ही हमें लोनावाला स्टेशन मिल गया। द घाट सेक्शन दैट फॉलोड वाज नॉट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही न्यू। घाट सेक्शन एक्चुअली वैसा ही था जिसका उसको पहले से जानकारी थी। जिस तरह से घाट सेक्शन पहले था वैसा ही था। द ट्रेन स्टॉप्ड एट कारजात ओनली ब्रीफली। वहां से चलते हुए ट्रेन जो है कारजात नामक जगह पर मिलती है। हालांकि कारजात पे वो ज़्यादा वक्त तक नहीं रुकती है, ब्रीफली जगह पर वो रुकती है। एंड वेंट ऑन एट इवन ग्रेटर स्पीड। और उसके बाद थोड़ी और गति के साथ आगे बढ़ती है। इट रोड थ्रू कल्याण। और वहां से होते हुए ये कल्याण को पार करती है और ऐसा लगता है कल्याण के बगल से जाती हुई रोर कर रही है, दहाड़ रही है। ट्रेन की वो स्पीड कि दहाड़ जैसा लग रहा है। Meanwhile, the racing mind of Professor Gaitonde, that's the protagonist of the story, Professor Gaitonde. He is the protagonist of the story, remember? Protagonist of the story, remember. Professor Gaitonde had arrived at the plan of action in Bombay. प्रोफेसर गायतोंडे भी बॉम्बे में आए हुए हैं और उनका अपना प्लान है बॉम्बे से रिलेटेड। Indeed, as a historian, he felt he should have thought of it sooner. नेचुरल है, क्योंकि प्रोफेसर गायतोंडे हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, तो इस सारी चीज़ों को देखने के बाद उनके मन में एक बात ख्याल आ रहा था कि काश उन्होंने इस बारे में पहले सोचा होता। He would go to a big library and browse through हिस्ट्री बुक्स। और वो सोचते हैं कि अब यहाँ से वो किसी लाइब्रेरी में जाएंगे और हिस्ट्री की ढेर सारी जो किताबें हैं उन्हें वो पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे। दैट वॉज द श्योरेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स वॉज रीच्ड। और एक्चुअल में जब तक आप पास्ट को नहीं जानते हैं तब तक आप प्रेजेंट का सही आकलन नहीं कर सकते हैं, है ना। ये होता है, पास्ट को जानना क्यों जरूरी होता है, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, समाज हो, किसी भी चीज का पास्ट जानना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि पास्ट के जरिए ही हम ये समझ पाते हैं कि सच में क्या उस वस्तु में राइज हुआ है या उस व्यक्ति में फॉल हुआ है ना। क्योंकि अगर हम वर्तमान देखते हैं तो वर्तमान से हमें चीजें समझ में नहीं आती है। जैसे बहुत से बड़े बड़े लोग हैं, हम सब लोग उनको देखते हैं तो लगता है अरे यार क्या लाइफ है इनकी, लगता है कि नहीं। बट एक्चुअली में आप देखने की कोशिश करो तो लाइफ ये नहीं है जो अभी वो जी रहे हैं। लाइफ वो है जहां से वो शुरू किए थे और जहां वो अभी पहुंचे हुए हैं। मतलब जिंदगी
को हम एज अ प्रोसेस सीखना चाहिए हमें, और प्रोसेस जब तक शुरू में ना जाओ नहीं समझ में आता है। जैसे यही स्टोरी हम लोग पढ़ रहे हैं, अब अगर हम बीच से स्टोरी को पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें तो समझ में नहीं आएगा ना कि कहानी कहाँ जा रही है। तो हम शुरू से चल रहे हैं, हमें मालूम चल रहा है कि जीजा माता एक्सप्रेस आई है, पुणे बॉम्बे रूट पर है। उसमें अभी मालूम चला कि प्रोफेसर गायतोंडे जो हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं वो बैठे हुए हैं, उनका अपना एक प्लान है जिसके लिए वो जा रहे हैं। और मुझे अब हम लोगों को मालूम चल रहा है कि वो किस तरह से सोच रहे हैं, उनकी सोच, क्यों वो हिस्ट्री की बुक्स को पढ़ना चाहते हैं, उसके पीछे रीज़न है। वो जानना चाहते हैं कि पहले यहाँ का इतिहास कैसा था और आज ये इतिहास कहाँ आया है। मीन्स जो डिग्री ऑफ चेंज है, कहाँ थे और कहाँ पर आ गए हैं, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो पास्ट इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी व्यक्ति या वस्तु का जानना। He also planned eventually to return to Pune and have a long talk with राजेंद्र देशपांडे। और उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि वापस जा करके राजेंद्र देशपांडे से वो एक लंबी बातचीत करेंगे, जो इस समय पुणे में है। ये तो बॉम्बे आ गए हैं, वो पुणे में है, वहां जाकर एक लंबी बातचीत उनकी होगी राजेंद्र देशपांडे से। Who would surely help him understand what had happened, जिसके बारे में ये सोचते हैं कि राजेंद्र देशपांडे इनकी जरूर हेल्प करेंगे अगर ये वहां जाते हैं, ये समझाने में कि एक्चुअली में हुआ क्या था। That is assuming that in this world there existed someone called राजेंद्र देशपांडे। अब आप मान लो कि इस दुनिया में, इस देश में, इस समाज में कोई एक व्यक्ति है राजेंद्र देशपांडे नाम का, उसको हम मान लेते हैं, है या नहीं पता नहीं, डोंट नो। बट कभी कभी ऐसा होता ना, आप लोग खुद भी किए होंगे, कोई बात आपको तुरंत नहीं समझ में आ रही होती तो आप क्या कहते हो खुद से कि चल के घर पे देखते हैं, तो वहां ट्राई करेंगे, वहां समझने की कोशिश करेंगे। घर पे कोई दूसरा व्यक्ति तो होता नहीं ना समझाने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, एक इमेजिनेशन बना लेते हैं, एक सोच बना लेते हैं कि घर पे कोई हमारी हेल्प करने के लिए होगा शायद। या प्रोफेसर गायतोंडे इसी तरह की सोच रख रहे हैं कि जब हम पुणे जाएंगे वापस तो वहां पर राजेंद्र देशपांडे हमारी हेल्प के लिए होंगे। द ट्रेन स्टॉप्ड बियॉन्ड द लॉन्ग ट्यूनल। बड़े ट्यूनल के पीछे ट्रेन स्टॉप करती रुकती है। इट वॉज स्मॉल स्टेशन कॉल्ड सरहद। ये छोटा सा स्टेशन था जिसका नाम था सरहद स्टेशन। यहां पर थोड़े वक्त के लिए ट्रेन रुकती है सरहद स्टेशन पे। एन एंग्लो इंडियन इन यूनिफॉर्म वेंट थ्रू द ट्रेन चेकिंग परमिट्स। कोई एंग्लो इंडियन था, आधा अंग्रेजी आधा इंडियन, जो हमारे स्टेशन में आकर के, ट्रेन में आकर के टिकट्स को या परमिट को चेक कर रहा था। दिस इज वेयर द ब्रिटिश राज बिगिंस। ये वही जगह थी, सरहद स्टेशन, जहां से मुझे एहसास होने लगा जैसे ब्रिटिश राज यहां से शुरू हो गया। यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम आई प्रेज्यूम, खान साहिब आस्क्ड। दूसरे कैरेक्टर से हमारा इंट्रोडक्शन होता है, खान साहिब। खान साहिब अगले कैरेक्टर हैं जिनसे हमारी मुलाकात हो रही है। उन्होंने प्रोफेसर गायतोंडे से क्वेश्चन किया और उन्होंने कहा कि यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम आई प्रेज्यूम। आपको देखकर जहां तक मुझे समझ आ रहा है आप पहली बार जा रहे हैं। यस, द रिप्लाई वॉज फैक्चुअली करेक्ट। ये बात तो बिल्कुल सही थी। गंगाधर पंत हैड नॉट बीन टू दिस बॉम्बे बिफोर। ये गंगाधर पंत एक और कैरेक्टर जो गायतोंडे साहब हैं, उनके साथ उन्होंने अपना पॉइंट रिव्यू शेयर किया कि गंगाधर पंत जो गायतोंडे हैं, प्रोफेसर गायतोंडे, वो कभी भी बॉम्बे इसके पहले नहीं आए। ही वेंचर्ड अ क्वेश्चन एंड खान साहब हाउ विल यू गो टू पेशावर। उन्होंने क्वेश्चन किया खान साहब से कि खान साहब आप बताएं आप पेशावर कैसे जाएंगे। खान साहब को उन्होंने क्वेश्चन किया गंगाधर गायतोंडे ने कि आप कैसे जाएंगे पेशावर।
दिस ट्रेन गोज टू विक्टोरिया टर्मिनस, ये ट्रेन यहां से विक्टोरिया टर्मिनस जाएगी, एंड आई विल टेक द फ्रंटियर मेल टुनाइट आउट ऑफ सेंट्रल, और फिर मैं वहां से फ्रंटियर मेल को पकड़ूंगा। मतलब ये ट्रेन जिसमें हम लोग हैं, जीजा माता एक्सप्रेस, वो यहां से हम लोगों को लेकर जाएगी विक्टोरिया टर्मिनस तक, विक्टोरिया टर्मिनस तक जाएगी, और विक्टोरिया टर्मिनस से पहुंचने के बाद वहां से मैं फ्रंटियर मेल को पकड़ लूंगा, फ्रंटियर मेल जो सेंट्रल से, और ये इस तरह से पेशावर पहुंच सकेंगे, ऐसा खान साहब ने बताया। हाउ फॉर डज इट गो, बाय व्हाट रूट? अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है, मतलब दूरी कितनी है, और कौन सा रूट आपको वहां लेकर जाएगा? बॉम्बे टू दिल्ली, देन टू लाहौर एंड देन पेशावर। अब बहुत सिंपल है, यहां से बॉम्बे जाएंगे, सॉरी बॉम्बे से दिल्ली जाएंगे, और दिल्ली से फिर हम लाहौर जाएंगे, और लाहौर से फिर पेशावर चले जाएंगे। अ लॉन्ग जर्नी, लंबी तो दूरी है हमारी। आई विल रीच पेशावर द डे आफ्टर टुमारो, मेरे ख्याल से परसों ही मैं पेशावर पहुंच सकूंगा। देयर आफ्टर खान साहब स्पोक अ लॉट अबाउट हिज बिजनेस, और इसके बाद तो खान साहब बोलना शुरू कर दिए, बोलना शुरू कर दिए, बोलना शुरू कर दिए, अपने बिजनेस के बारे में बताते रहे। पूरे टाइम खान साहब बिजनेस के बारे में अपने डिस्कस करते रहे, बोलते रहे। दो तीन लोग होते हैं बहुत बात करते हैं। एक टीचर आमतौर पे शांत मिजाज बहुत कम मिलते हैं, मतलब उनको बात करने की आदत हो जाती है। उनसे भी ज्यादा बात करने वाले वकील साहब बहुत बात करते हैं। मतलब आप तो कभी अगर वकीलों से अगर आपका पाला पड़ा होगा तो सर दर्द करने लगता है उनकी बात सुनते सुनते। सॉरी, किसी के घर में हो तो प्लीज बुरा मत मानिएगा। तीसरे जो होते हैं एजेंट्स, जो ये सब इंश्योरेंस वगैरह के एजेंट्स होते हैं ना, बहुत बात करते हैं। इनके साथ कभी आपका अगर उठना बैठना हो जाए तो आपको ऐसा लग जाता कि यार कहां फंस गए हम। और चौथे बिजनेसमैन, उसमें आप एजेंट्स को भी जोड़ सकते हैं। और पांचवें नेता। सही मायने में ये जो पांच लोग हैं ना, बहुत बात करते हैं। अगर कंपैरिजन करें तो टीचर थोड़ा कम बात करता है, अपने प्रोफेशन की बात है तो इज्जत बचानी पड़ेगी, थोड़ा कम बात करता है। बाकी वकील साहब, बिजनेसमैन, एजेंट और ये लीडर, हमारे जो नेता होते हैं, बहुत ज्यादा बात करते हैं। इनके साथ कभी बैठना फंसने के समान होता है, बराबर होता है ना। तो अब यहां शुरू हो गए, ये बिजनेस की बात कर रहे हैं, लगे हुए हैं। अ गंगाधर पंत वाज विलिंग लिसनर। और कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से किसी की बात सुन रहे होते हैं, भले सुन नहीं रहे होते हैं लेकिन सुन जरूर रहे होते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बात करते करते हाँ हाँ ठीक, अच्छा कहा आपने, अरे वाह, मतलब अरे वाह क्या है, हाँ क्या है, शायद बोलने वाले को भी नहीं मालूम है। लेकिन इसलिए क्योंकि जो बोल रहा है ना, बड़े इंटरेस्ट के साथ बोल रहा है, जो बड़े इंटरेस्ट के साथ बोल रहा है, तो कहीं उसको हर्ट ना फील हो जाए, इसलिए हम बीच बीच में बोलते हैं हाँ ठीक कहा आपने, अच्छा अच्छा वो रूट, अच्छा लाहौर वाला, हाँ लाहौर से आप पेशावर, अरे बहुत बहुत दूर है। अब उसमें अगला बंदा लगा हुआ है। तो गंगाधर पंत जो थे, इस बात को सामने रख रहे हैं कि हम आपसे लिसनिंग कर रहे हैं। फॉर इन दैट वे he was able to get some flavor of life in this India that was so different. Actually एक तरीका था कि किस तरह से वो इस फ्लेवर को पा सकेंगे। कमिंग बेटा, पीके, वी आर कमिंग, ओके। वेल, तो एक तरीका था कि किस तरह से वो इंडिया जो नेशन हमारा था, और नया इंडिया जो सामने आ रहा है, उसमें क्या फीलिंग थी, क्या सोच थी लोगों की, उस सोच को पकड़ने की कोशिश गंगाधर पंत करने की कोशिश कर रहे थे। सो डिफरेंट। द ट्रेन नाउ पास्ड थ्रू द सबर्बन, शहर का क्षेत्र था, वहां से पास होती हुई ट्रेन आगे बढ़ती है। द ब्लू कैरेज कैरीड द लेटर्स
एक ब्लू कैरेज आता है जिसमें ढेर सारे लेटर्स होते हैं, GBMR ऑन द साइड, जिस पर साइड में लिखा था GBMR। पुराने समय में, आज तो हमारे पास व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, इंस्टा है ना, ट्विटर है, बहुत ढेर सारे सोशल मीडिया के जरिए हैं जिससे हम एक दूसरे से बातें कर लेते हैं। तो लेटर्स का ज़माना तो चला गया, लेकिन उस ज़माने में लेटर्स जाया करते थे। और प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतंडे का नज़र वहाँ पर पड़ता है कि वहाँ पर तो एक नीले ब्लू कलर का बैग आता है जिसमें GBMR लिखा होता है, उसमें ढेर सारे लेटर्स होते हैं। ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे, ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे एक्सप्लेन्ड खान साहब, ये बात समझाने की कोशिश की खान साहब ने कि आप जो ये GBMR पढ़ रहे हैं ये एक्चुअली ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे का शॉर्ट फॉर्म है। सी द टिनी यूनियन जैक पेंटेड ऑन ईच कैरेज, आप ध्यान से देखिए, यूनियन जैक का इसका प्रिंट किया गया इसके ऊपर, आप देख सकते हैं। अ जेंटल रिमाइंडर दैट वी आर इन ब्रिटिश टेरिटरी। और ये जो यूनियन जैक है ना, यूनियन जैक, वो हमें ये रिमाइंड करता है, इस यूनियन जैक से हमें मालूम चल रहा है कि हम लोग अभी ब्रिटिश टेरिटरी में हैं, अंग्रेजी क्षेत्र में हैं, अंग्रेजी हिस्से में हैं, ब्रिटिश टेरिटरी। द ट्रेन बिगन टू स्लो डाउन बियॉन्ड दादर, जैसे दादर को ट्रेन पार करती है तो वहां से थोड़ा सा स्पीड ट्रेन का कम हो जाता है, स्पीड ट्रेन की कम। एंड स्टॉप्ड ओनली एट इट्स डेस्टिनेशन, और वहां से जा करके दादर से पहुंचती कहां है, विक्टोरिया टर्मिनस। सो दादर से आगे जा करके विक्टोरिया टर्मिनस पर स्टॉप हो जाती है, यहां पर आकर के स्टॉप्ड, ट्रेन रुक जाती है, विक्टोरिया टर्मिनस। द स्टेशन लुक्ड रिमार्केबली नीट एंड क्लीन, स्टेशन विक्टोरिया टर्मिनस को जब प्रोफेसर गंगाधर पंत ने देखा तो बिल्कुल शॉक थे कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन, एकदम साफ सुथरा ये स्टेशन है। द स्टाफ वॉज मोस्टली मेड अप ऑफ एंग्लो इंडियंस, और अगर स्टाफ को देखिए जो वहां पर काम करने वाले लोग थे उनको देख करके ऐसा लगता है कि वो एंग्लो इंडियंस हैं, कुछ अंग्रेजी कुछ इंडियन हैं। एंड फारसीस, और साथ में फारसीस भी हैं वहां पर, अलॉन्ग विद अ हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स, और इनके साथ साथ ब्रिटिश ऑफिसर, मतलब एंग्लो इंडियन, पारसीस और ब्रिटिश ऑफिसर्स वहां पर आमतौर पर देखने को मिले। एज ही emerged फ्रॉम द स्टेशन, गंगाधर पंत फाउंड हिमसेल्फ फेसिंग एन इम्पोजिंग बिल्डिंग, और जैसे ही स्टेशन से बाहर आते हैं गंगाधर पंत सामने देखते हैं एक बड़ी सी बिल्डिंग उनके सामने है। द लेटर्स ऑन इट प्रोक्लेम्ड इट्स आइडेंटिटी, जो अक्षर उस पर लिखे हुए थे वो उसकी पहचान बता रहे थे। टू दोज हु डिड नॉट नो दिस बॉम्बे लैंडमार्क, उन लोगों के लिए जो ये नहीं जानते थे कि बॉम्बे का लैंडमार्क क्या है, बॉम्बे का सही में पहचान क्या है। ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया वो लिखा हुआ था, आपको याद रखना पड़ेगा वहां पर क्या लिखा हुआ था। ईस्ट इंडिया हाउस हेड क्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, द ईस्ट इंडिया कंपनी। प्रिपेयर्ड एज ही वॉज फॉर मैनी शॉक्स, नेचुरल है, अभी तक कई शॉक प्रोफेसर गायतोंडे को मिल चुके थे, तो प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे को एक और शॉक मिल गया
एक और स्तब्ध करने वाली पॉइंट मिल गई। प्रोफेसर गायतोंडे हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस। एक्चुअली वहां पहुंचने के बाद प्रोफेसर गायतोंडे ने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, इसकी उम्मीद तो नहीं की थी। गुड मॉर्निंग संजीत। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बीन वाउंड अप शॉर्टली आफ्टर द इवेंट्स ऑफ 1857। नेचुरल है, 1857 की जो घटना थी उस घटने के बाद थोड़ा बहुत ईस्ट इंडिया कंपनी वाउंड अप तो हुई थी, घायल हुई थी, थोड़ा सा उसको सदमा तो लगा ही था। एट लीस्ट दैट इज व्हाट हिस्ट्री बुक सेड। और सही बात तो यह है कि 1857 का जो इवेंट था ऐसा हमारी किताबों में लिखा गया है कि ऐसा ही हुआ था। Yet here it was, not only alive but flourishing। और सच बात तो सामने थी, यह बात केवल अलाइव नहीं थी, ये बिल्कुल सामने दिख रही थी, फ्लॉरिश होती हुई दिख रही थी। सो हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न परहैप्स आफ्टर 1857। तो आप कह सकते हैं कि 1857 के बाद जो ये इवेंट यहां पर होता है, हिस्ट्री जो है वो अपना दूसरा टर्न ले ली होगी, दूसरी तरफ मुड़ना शुरू हो गया होगा, अदरवाइज हिस्ट्री कहीं और जा रही होगी। परहैप्स बिफोर 1857। हाउ एंड व्हेन हैड इट हैपन। सवाल यह है कि यह बात कब हुआ और ओके संजीत, हाउ एंड व्हेन हैड इट हैपेंड। समझ में नहीं आता यह घटना कब हुई और कैसे हुई। ही हैड टू फाइंड आउट। फिलहाल नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं है, और जो हम नहीं जानते हैं या नहीं समझ पाते हैं उसको तो फाइंड आउट करना होता है ना, उसको जानना तो होता ही है कि यह बात कैसे हुई और कहां हुई। एज ही वॉक्ड अलोंग हॉर्नबी रोड। अब वहां से प्रोफेसर गायतोंडे निकलते हैं और हॉर्नबी रोड पे पहुंच जाते हैं, हॉर्नबी रोड से होते हुए। एज इट वॉज कॉल्ड, जैसा इसका नाम उस समय था हॉर्नबी रोड, इट वॉज कॉल्ड। ही फाउंड अ डिफरेंट सेट ऑफ शॉप्स एंड ऑफिस बिल्डिंग्स। वहां जाने के बाद उन्होंने देखा कि हॉर्नबी रोड के पास दूसरी तरह की बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, सेट्स ऑफ बिल्डिंग नजर आ रही हैं। देयर वॉज नो हैंडलूम हाउस बिल्डिंग। वहां पर कोई भी हैंडलूम हाउस बिल्डिंग नहीं थी, मतलब एक तरह से खादी ग्राम उद्योग नहीं था। हैंडलूम हाउस कोई भी इस रूट पर, यहां पर नो हैंडलूम हाउस, कोई भी हैंडलूम हाउस वहां पर नहीं था हॉर्नबी रोड के पास। इंस्टेड देयर वर बूट्स एंड वूलवर्थ डिपार्टमेंट्स स्टोर्स। वहां पर अगर आप जाते हैं तो वहां ढेर सारे आपको चीजें मिल जाती, जैसे बूट्स मिल जाती हैं, वूलवर्थ डिपार्टमेंट स्टोर्स मिलता है। इम्पोजिंग ऑफिस ऑफ लॉयड्स, वहां ढेर सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम भी आप देखने को मिल सकते हैं, जैसे वहां पर लॉयड्स का भी शोरूम, आज के शब्दों में कहें तो शोरूम था लॉयड्स, और बार्कले था, एंड ब्रिटिश बैंक्स। लॉयड्स और बार्कले के अलावा कुछ ब्रिटिश राज के बैंक्स भी थे जो वहां पर थे। एज इन अ टिपिकल हाई स्ट्रीट ऑफ अ टाउन इन इंग्लैंड। बिल्कुल ये वैसे लग रहा था जैसे अगर इंग्लैंड के किसी आप टिपिकल स्टेट में चले जाओ जो इंग्लैंड की पहचान होंगे। लॉयड वहाँ बहुत बड़ा बैंक है, आपको मालूम है टी.एस. एलियट साहब ने भी लॉयड बैंक में काम किया था, और बार्कले भी इंग्लैंड की एक बड़ी कंपनी मानी जाती है। तो बार्कले, लॉयड्स और बूट्स एंड वूलवर्थ, ये सब बड़े बड़े स्टोर्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं। वहाँ पर इंडिया के हैंडलूम के लिए तो कोई जगह ही नहीं थी, ये ध्यान रखिएगा। लॉयड्स, लॉयड्स को इसलिए ध्यान में रखिएगा क्योंकि ऐसा ब्रांड का नाम पूछा जा सकता है, क्योंकि पहली बार एग्जाम हो रहा है तो हम लोगों को आइडिया भी नहीं है कि कहां से क्या पूछ लेंगे। और साथ ही बार्कले को भी आप याद रखिएगा।
बार्कलेस। ये स्पेशली लॉयड और बार्कलेस ऐसी शॉप थी जो वहाँ पर प्रोफेसर गायतोंडे को मिलती हैं, और जैसा प्रोफेसर गायतोंडे थे उनको शौक पे शौक वहाँ पर मिलते जा रहे हैं। और नेचुरल है, अभी स्टोरी ने अपने रिदम को नहीं पकड़ा हुआ है, एडवेंचर है, एक फिक्शन है। जो राइटर हैं नार्लिकर स्पेशली, वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में हमको लेके चल रहे हैं। वो मॉडर्न इंडिया में पैदा हुए थे, लेकिन इसके बावजूद अगर आप सेटिंग देखिए तो ऐसा लग रहा है पूरे इतिहास को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां पर भारतीय नागरिकों के आज़ादी की बात थी तो उस क्षेत्र में जाकर के कोशिश कर रहे हैं कि 1857 के आसपास हमारे कंट्री की या हमारे कंट्री मेन की क्या सिचुएशन रही होगी, कैसे वो लोग रहे होंगे और कैसी सोच रही होगी, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि हमें पास्ट जानना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि पास्ट से हमें फ्यूचर की प्लानिंग बनाने में मदद होती है और प्रेजेंट का इवैल्यूएशन करना आसान हो जाता है। जैसे मैंने पहले समझाया आपको कि पास्ट में अगर हम खराब थे और आज अगर हम अच्छे हुए हैं, इसका मतलब कि हमने कुछ अपने अंदर अपग्रेडिंग की है, जिसकी वजह से ये चेंजेस हमारी लाइफ में आए हुए हैं। पास्ट में हम अच्छे थे और अगर हमने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो हम डिग्रेडेड हो जाएंगे। इसका मतलब हमारे अंदर गिरावट आएगी, हमारी क्वालिटी में गिरावट आएगी और हमारा राइज की जगह पर फॉल हो जाएगा। तो पॉइंट किस चीज का है? पॉइंट यह है कि इतिहास हम इसलिए भी पढ़ते हैं ताकि हमें यह मालूम चल सके कि प्रोसेस क्या है, किस तरह से चल रहा है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि फ्यूचर की प्लानिंग, कि हमें फ्यूचर को प्लान कैसे करना है, किस तरह से बनाना है। तो प्रोफेसर गायतोंडे का जो एडवेंचर है अभी तो कंटिन्यू, क्योंकि अभी तो हम लोग बैक में ये बैकग्राउंड लेकर चल रहे हैं, समझने की कोशिश करें कि स्टोरी को कहां पर सेट किया जा रहा है, फिर स्टोरी को आगे डेवलप किया जाएगा। फिलहाल मेन पॉइंट्स को हम लोगों ने हाईलाइट करने की कोशिश की, काफी कुछ पॉइंट्स हमको मिल रहे हैं जो मैं दिमाग में अपने रखने पड़ेंगे एज अ कॉम्पिटिटर। तो आज के लिए इतना ही। विल सी टुमारो इन द क्लास। थैंक्स फॉर जॉइनिंग। हम ग्रेट टाइम, ग्रेट जॉय एंड ग्रेट हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।